हैव यू डन द सर क्वेश्चंस? यस सर, थोड़े से बच्चे हैं अभी तक। अच्छा, क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? हमने कोसाइन रूल कर लिया ना, कोसाइन रूल यस सर, वगैरह। अब ग्राफिक फ्रॉम द यूनिट सर्कल स्टार्ट करना है। अच्छा, ग्राफ फ्रॉम द यूनिट सर्कल, राइट। ओके, तो इसमें ओके ठीक है, बहुत बेसिक दिया हुआ है। ठीक है, चलो वन बाय वन लेते हैं। साइन, द वेरी फर्स्ट ग्राफ इज साइन ग्राफ। Okay, so this is the sine graph. Okay, so first of all, what is unit circle? To understand this sine graph, we have to understand the unit circle first. So what is unit circle? बताओ सर unit. रेडियस। hmm, the circle whose radius is 1, centered at origin, right? है ना? यस सर। So this is unit circle. Can we write the coordinate of any point P which is on the circumference of this circle in terms of the angle made by, you know, with the line OP, like this? So if, can you tell me the coordinate of point P in terms of theta? cos थीटा sin थीटा। Very good. Cos theta, sin theta. So as we increase, like as we go along this, the circumference of the unit circle from point A to point B, okay, which value is increasing and which one is decreasing here? Like I'm talking about the coordinates. So which coordinate is increasing as we go from A to B, and which coordinate is decreasing? Are you getting what I mean here? See, what is the coordinate of point A here? What is the coordinate of point A? cos थीटा Cos theta, no, cos 0, sin 0. Because 1 that will कॉमा make, 0। yeah, 1 comma 0, which is cos 0, sin 0. Okay, 1 comma 0, right? What is the coordinate of point B? 0 कॉमा 1। 0 comma 1, which is, if I ask you in terms of angle, what would you say? The coordinate of point B. In sin terms, थीटा। no, no, 90 degree, no. See, this makes 90 degree with x-axis here. See, if you connect the point O and B, okay, that makes 90 degree with x-axis. So the angle made by the line, okay, terminal line with the x-axis is 90 degree. So the coordinate of point B has to be cos 90 comma sin 90, right? So cos 90 is 0, sin 90 is 1. That we can at least verify here, right? So as we go from point A to point B, okay, the x coordinate is decreasing. Please verify. The x coordinate is decreasing. It is going from 1 to 0, right? And the curve is smooth. So there is no sharp change in the value. It has to be like very smooth. It should be very gradual change. So the x coordinate is changing from 1 to 0, and the y coordinate are changing from 0 to 1. Please verify, right? So which coordinate is increasing and which coordinate is decreasing? तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है। हाँ, एंड एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो डिक्रीज रहा हो है। रहा है। ठीक है, चलो अभी इसको हम कोशिश करते हैं, इस पार्ट को हम साइन ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, सो वी जनरली टेक एक्स एक्सिस एज थीटा,
and y-axis as just y, and the graph of y is equal to sine theta. Okay, we are trying to draw the graph of y is equal to sine theta, right? So right side of this y-axis are positive angle, left side of this y-axis are negative angle, right? This is negative angle here, and we have positive angle towards right hand side. That these are the convention that we know, like for the coordinate axis, isn't it? So we start with zero here. We start with zero angle, right? And let's say this is 90 degree. Okay, this is 90 degree. So as we start from zero, is zero angle. Okay, what is the x and y coordinate at zero angle? 0 0 No, no, 1 0. 10, right? Please understand this properly. 10, right? At 0 degree, the x and y coordinate is 1 comma 0, right? So at 0 degree, the y coordinate is, what is y coordinate? See, we So are 0 drawing. See, we are trying to draw the sine graph, right? We are trying to draw the sine graph. So we are just interested in the y coordinate, right? So what is y coordinate at 0 degree? so 0 Zero. Very good. So this is one of our point, right? Just focusing, right? Now, what is y coordinate at 90 degree? 1 1. So, and we know, like we already proved that the maximum value of sine theta is 1 and the minimum is -1. -1. Very good. So the maximum has to be 1 and the minimum has to be -1. So the range of sine theta goes from -1 to 1. So the sine, like the y coordinate at 90 degree is 1, right? So if I try to plot the point has to be here, isn't it? At Yes. 90 degree, the graph of y is equal to sine theta means the y coordinate is 1, right? And there is gradual change. There is no sharp change, means the curve is smooth, right? So we can draw the curve like this. There is a gradual change in the curve. Are you getting the idea here? Hmm? Means it Yes. will go from 0 to 1 if we increase the angle from 0 to 90 degree. Now let's talk about the second quadrant here. So what would be the coordinate of point C? What would be the coordinate here? So -1 0. -1 0. So we are basically interested in y coordinate. So the y coordinate is 0 over there. And what is the corresponding angle here? What is the angle made by the terminal line with positive x direction? Cos 180, sin 180. 180. Very good. Okay. So this angle is 180 degree. So we can at least go till 180 degree now. So there is a, like, what is the graph? What is the nature? Like if you go from 90 degree to 180, is y coordinate increasing or decreasing? So decreasing. Decreasing. और decrease होके कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है? 1 to 0. 0. So the y coordinate decreasing and it is going from 1 to 0, right? Are you getting the idea here? Yes, sir. Similarly, like if we select this point D, what is the b, like uh, the y coordinate of D is how much? -1. -1. So the coordinate is 0 comma -1, and the y coordinate is decreasing or increasing here? So decreasing. Decreasing. Very good. So because it is going negative, so decreasing. And this angle is, what is the corresponding angle of OD made by 270. 270? So the next point is, the next angle is 270 degree. Okay.
and it is the y coordinate is decreasing. Y coordinate means sine is decreasing from 0 to -1. So at 270, the value of sine theta has to be -1, and there is gradual change. So this is the part of the graph from 180 to 270, isn't it? Yes, sir. Okay. Now again we reach point A where the y coordinate is increasing from -1 to 0. Okay, and the corresponding angle is Yes, sir. 360 degree because of the complete revolution around the point. So this is the the remaining part of the graph. So this is the sine graph. Did you understand this? Hmm? Yes, sir. Perfect. So they have like explained with the points what they have considered here, but like we can understand through unit circle easily, and there is a gradual change in the graph, so we should take care of that also. So if I ask you what is the like there are few values we know. So like what is sine 45? We already discussed those things. What is sine 30, sine 45, and sine 60? Yes, sir. So what is sine 30? 1/2. 1 by 2. And sine 45? 1/√2. लर्न नहीं किया हो ठीक से. And sine 60? Root 3 by 2. ठीक है? All are positive. So basic see, this is 45 here, 45 degree, right? This is 30 degree, and this is 60 degree. So like you can verify that this is at 30 degree, this is 0.5. At 45, 1 by root 2. At 60, this is root 3 by 2. Okay, likewise. So by considering these points or plotting those points, we can draw the graph like what the methodology they have followed here. Okay, they have considered few points from 0 degree to 360 degree, right? 0, 30, 60, 90, 120, 150, and they might have used the calculator to find out their corresponding values. Okay, their corresponding sign values, and they have plotted the points. But that approach is not that smart. Are you getting the idea here? So what we have used here, by using unit circle and by considering all points from A, B, C, D, we can even draw the graph of y is equal to sin x like this, isn't it? Yes, sir. Okay. So now let's move to the next part of this, which is y is equal to cos x. नहीं, उसके पहले कुछ और है. cos x sin x cos x, अच्छा डायरेक्ट दे दिया है फिर उसके बाद. ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. Yes, sir. You want to solve questions or we'll just explain the theory like before? So theory explain कर दो. वही ना. ठीक. तो ठीक है, इसके पहले मैं ये तीनों ग्राफ थोड़ा वाइंड अप कर ही लेता हूँ, नहीं तो फिर से ये ड्रॉ करना पड़ेगा. So if I ask you how would you draw the graph of y is equal to cos x, so which coordinates we are interested in basically? X coordinates. X coordinates. तो आप देखो पॉइंट A से पॉइंट D तक, A B C D. ओके. X coordinate क्या है at A? What is X coordinate at point A? 1. 1. So the corresponding angle is Corresponding angle is 3 0, no? 0 degree. 0 degree. At A, the angle is 0. At B, the angle is 90. At C, the angle is 180. Likewise. Okay. So at A, the angle is 0 degree, and the corresponding x coordinate, because we are interested in the cosine graph. Okay. So the corresponding x coordinate is 1. So this is my point, right? At 0 degree, the graph is 1, right? The value Okay. of y is equal to cos theta. So at x is equal to 0, or sorry, theta is equal to 0, right?
The value of cos Yes, sir. 0 is 1. Okay. Now what about at 90 degree? What is the cos value? Cos The 90, zero 0. So this will be my next point. What about at 180? What is minus minus 1? So the cos value is minus 1. So this will be my corresponding point, right? What about 270? so zero 0. So this will be my corresponding point. At 270, the y value is 0. Are you getting which y value I'm talking about here? The y value for yes this graph. Here it is like x value. So don't confuse with the thing. Okay. I'm just using the unit circle for the corresponding cosine value, right? And I'm plotting those points here in this graph. So at 360 degree again, what would be the cosine value like cos 360? one 1. So that gives me the cos 360 degree. I'm plotting that value here. So at cos 360, the corresponding y value or means the cosine value is 1. So this is the the corresponding plot the points here on the graph. So we are just connecting them with the smooth curve. So this is cosine graph. Did you understand this? yes sir Okay. तो इसका फोटो ले लो आप, यूजफुल रहेगा. done sir Done. Okay. So now this is the next topic here, trigonometric function. Okay. So in trigonometric function, as we have seen, both the graph y is equal to sine x, cos x, both like a wave nature, like this, isn't it? With the different phase difference. Like one is the sine graph is starting with this point, right? 0, 0, and the cosine graph is starting with 0, 1, right? So there yes is some phase difference that is called phase difference. Okay. What is the phase difference here? Pi by 2, right? If you shift the graph by pi by 2 degree, both the graph are one and same thing. And that is why, you know, the sine theta is equal to cos pi by 2 minus theta. Do you know this formula? Sine theta is equal to cos 90 minus theta. Are you sure? no sir Don't know. So uh, just I'm taking little bit time here to make you understand this what I said here. See, if this is the right angle triangle, okay. If this is theta, what is the other angle? What is this angle? so एक तो 90 डिग्री होगा ये 90 डिग्री है, ये थीटा है. What would be angle A? 90 plus theta minus 180 180 minus 90 plus theta, no? So 90 minus theta हो जाएगा ना. ये एंगल कितना हो जाएगा? See, the sum of this angle A and C has to be 90, right? yes sir देखो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले आप ये तो सिंपल कैलकुलेशन है. सी दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? ए बी सी. One of the angle is has to be 90 degree. So angle B is 90 degree and angle C I already given you as theta, right? yes So sir angle A has to be like 90 90 minus minus theta because the sum of angle A and C has to be 90 degree. One of them is theta, so other has to be 90 minus theta, right? So this angle is 90 minus theta. I can write that as pi by 2 minus theta, right? Because pi by 2 is 90 degree. ठीक है ना? चलो अब ये yes sir दोनों चीज निकाल लो. साइन थीटा क्या है? यहाँ से साइन थीटा क्या होगा? cos theta by नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा, यहाँ वही तो प्रूव कर रहे हैं हम लोग. साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे? अपोजिट अपॉन AB upon ए बी AC अपॉन ए सी, है ना? और yes कॉस
90 माइनस थीटा क्या होगा? बी सी अपॉन, नहीं नहीं, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी। तो दिख रहा है आपको, दोनों सेम ही है ना? बात समझ में आ रहा है आपको? इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर हुआ आपको? देखो आपके सामने ही मैंने लिया ना, आपके ए ट्रायंगल ए बी सी, एंड वी नो द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, राइट? सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। वही चीज यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि साइन एंड कोसाइन ग्राफ आर सेम एक्सेप्ट देयर फेज डिफरेंस। तो पाई बाय 2 अगर शिफ्ट कर देते हो ग्राफ को, सो बोथ द ग्राफ आर ओवरलैपिंग ईच अदर, राइट? यस सर। बस वही चीज यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा था। ठीक है, अभी इसमें आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं। कुछ आपको टर्म्स यहाँ पे समझने पड़ेंगे। लाइक y इज इक्वल टू साइन थीटा है, सपोज दिस इज द साइन ग्राफ, ओके? y इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज द लाइक द इक्वेशन। सो व्हाट इज पीरियड? व्हाट इज पीरियड? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? अ पीरियोडिक फंक्शन इज वन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ रेगुलर अकरिंग पैटर्न। So if I try to draw the sine graph here, okay, suppose this is 1, this is minus 1, okay, यस so सर। the sine graph will be like this, ठीक है? ये एंगल कितना होगा? एनी आइडिया? 360। वेरी गुड। तो 360 के बाद देखो फिर से ग्राफ रिपीट हो रहा है। 360 के बाद फिर से वही पैटर्न आ रहा है ग्राफ का, है ना? ये कितना होगा? 360। नहीं, ट्वाइस हो जाएगा ना, दो बार आ गया, 720। 720 हो गया, है ना? बात समझ रहे हो आप? फिर वापस से इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है ग्राफ। तो ये कितना हो गया? 1080। क्या बात है, इतना फटाक से कैलकुलेशन! 720 प्लस, मुझे करने दो, 720 प्लस 360, 6 प्लस 2 8, हाँ 1080। अच्छा वही कर रहे थे क्या आप? ठीक है, तो ये देखो पैटर्न जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना? अब देख रहे हो हर एक यस। इंटरवल के बाद पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो पीरियोडिक नेचर क्या होता है? व्हाट इज पीरियोडिक? Any movement which repeats after regular interval of time, that is called periodic nature, and the time taken for one complete revolution is called one period. Did you understand? This is physical term. In physics you might have like come across with this. So देखो circular क्या होता है? ये actually nature ही है, because of the circle we are getting everything here. See, after this, after 0 degree, again it and goes along the same path, right? So 0 to 360, 360 to 720, 720 to 1080, ऐसे चलते रहता है, and therefore we can see any like any angle that can be written with any real number like this. Any big number can be written as the angle. There is some sense of writing this type of angle, right? Because it exists. It exists. Are you getting the idea here? यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा, हाँ पीरियड क्या होता है? व्हाट इज पीरियड? एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। सो व्हाट इज पीरियड? व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ दिस साइन ग्राफ? चलो सर मैं यहाँ डेफिनेशन पहले लिखता हूँ। देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पहले उसके लिए पीरियड जानना जरूरी है, ओके? सो पीरियड इज सर, बेसिकली, कितने टाइम तक चला हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड हम एंगल के टर्म में लिखेंगे। सो व्हाट वुड बी द एंगल, लाइक व्हाट इज द पीरियड हियर फॉर द साइन ग्राफ? 0 to 360। हाँ, सो पीरियड होता है 360 डिग्री, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। सो पीरियड ऑफ साइन ग्राफ इज 2 पाई, ठीक है? पाई, अच्छा रेडियन में नहीं आ रहा है ना, तो
तो आप 360 ले, ठीक है, आपको रेडियन में नहीं है। तो यहाँ पे भी आप ना थोड़ा मैनेज करना, दिस इज 90 बेसिकली, ओके सर। ठीक है, दिस इज 90, वो मैंने बताया भी आपको 90 माइनस थीटा ना, ओके। ठीक है। तो व्हाट इज पीरियड? 360, period of sine graph is 360, right? थ्री फिफ्टी। And what is periodic function? जैसे यहाँ पे लिखा है, what is periodic function? पूरा काउंट कर लेंगे नहीं, तब तक। the function whose graph repeats after regular interval of time or regular interval of pattern, like after some period. Okay, so that particular time or the duration is called period. Okay, so periodic function is a function which repeats after some time, right? यस सर। So the period of the periodic function is the length of one repetition or cycle. So what is period? So length of 360। one repetition. So the length of one repetition is 360 degree here. Okay. यस सर। Generally, it is like uh, come with the time sense of time. But here, since the angle is the cause of repetition, so we write period in terms of angle. Okay. यस सर। फिर नेक्स्ट क्या है, द ग्राफ ऑसिलेट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड द प्रिंसिपल। सो दिस एक्स एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम थीटा रखे हुए हैं एक्चुअली। सो दिस दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस और मीन लाइन। तो ये सब कुछ टर्म है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड और लर्न। ओके, जो मीन लाइन होता है जिसके अराउंड, एक्चुअली जिसके अराउंड साइन ग्राफ ऑसिलेट्स होता है, okay, यस सर। that is called the principal axis or the mean line, okay। यस सर। फिर जो मैक्सिमम पॉइंट है, राइट, द मैक्सिमम पॉइंट अकर एट द टॉप ऑफ द क्रेस्ट एंड द मिनिमम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके, these are the maximum point, okay, two यस successive maximum point, right? यस सर। So that occur at the top of the crest, तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब उतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता मैथ्स में, कम यूज होता है। एंड दिस मिनिमम पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रफ, ओके। यस एंड द सर। डिस्टेंस ऑफ, यू नो, the distance of this maximum point or minimum point from the mean line or from the principal axis is called amplitude, okay, this is important one। So what would be the amplitude of this graph? What did I say for the definition? The distance of मीन the टर्म। maximum or minimum point of the graph पी। from principal axis। So what is the distance? See, this is the maximum point. ए। Let's say B are the maximum point. These are the minimum point, right? यस। So distance of those points from principal axis। So distance के लिए हम perpendicular line draw कर देते हैं हमेशा, है ना? यस सर। So what is the length of this distance? सर वन। 1. So the amplitude will be 1. 1 unit, 1 centimeter, whatever. Okay. Similarly, the distance of minimum point from the principal axis is also, माइनस वन। नहीं, distance मैंने बोला वन। 1, distance तो 1 ही होगा ना, distance can't be negative, right? तो ये भी distance 1 होगा। So therefore the definition is like this: the amplitude is the distance of maximum or minimum point from the principal axis is called amplitude, ठीक है। तो आप ये यस। सारे चीज यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। सी दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस,
right? This is the horizontal line, principal axis. This is maximum point, this is minimum point, right? Yes, sir. And the distance of maximum and the principal axis is called amplitude. So this distance is amplitude, right? Yes, sir. And this is period, one period, which gives the one complete revolution. Yes, sir. Okay. The amplitude can also be found by using this formula, maximum minus minimum अपॉन टू. ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो. सो व्हाट इज Okay. मैक्सिमम A one एंड व्हाट इज मिनिमम? minus one one. माइनस. सो 2 upon 2, which is 1. So this is the formula of amplitude. You can find out the amplitude by using this formula, maximum minus minimum upon 2. Okay. And how would, like, what is the principal axis? Can you tell me the equation of the principal axis here? What is the equation of x axis? Do you know that? Y is equals to sine theta. नहीं नहीं, equation of principal axis I'm asking. Y is equal to 0, right? X axis का equation क्या होता है? Y is equal to 0. So Yes, sir. equation of principal axis is Zero. y is equal to 0. Y is equals to zero. So we can find out the principal axis, the intersection of the principal axis by using this formula, max plus mean upon 2. Okay. So y is equal to, like, we can have the formula here. What is max? 1, mean minus 1 upon 2, so 0. Do you understand this? So the equation of principal axis can be found by using this formula, y is equal to max plus mean upon 2. Make sense? Yes, sir. Okay. So what next here? After this we have हाँ चलो, कोसाइन ग्राफ में भी यही पैटर्न होता है. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, y साइन ग्राफ, y is equal to cosine, y is equal to tan. So all these are periodic function. True or false? All these are periodic function. Why? Y is equal to cos x, cos theta is periodic. See, we talked about sine theta, right? Y is equal to sine theta. Why y is equal to cos theta is periodic? तो समझ नहीं आया क्वेश्चन. क्वेश्चन है समझ में? देखो, Yes. is is y is equal to sine theta periodic function? This Yes, is sir. first question. Why periodic? Because it repeats after regular interval of time period, Yes, sir. right? Y is equal to cos theta is periodic. Or first verify whether it is periodic or not. So it is. It is periodic. Why it is periodic? So क्योंकि वो भी आफ्टर वन इंटरवल स्टार्ट होगा दोबारा 360 से 720 727 080. Very good. So what is time period in for y is equal to cos x or cos theta? So 360 degree. 360. So period इसका क्या हो जाता है? 360. 360 हो जाता है. ठीक है ना? What is amplitude for cosine graph? So 1 1. Very good. And what is the equation of the principal axis? 0. जी इक्वेशन पूछ रहा हूँ, इक्वेशन ऐसे Y नहीं is बोलते. equals to y is equal to 0 बोलते. 0. ठीक है. ठीक है, तो अभी tan का नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि tan का पहले ग्राफ समझ लेते हैं एक बार, शायद आपको याद होगा नहीं होगा. ठीक है. Yes, sir. So tan का हुआ नहीं अभी शायद. हुआ है, एक बार हुआ है.
लेकिन बहुत पहले हुआ है, मुझे याद है। ओके सर। ठीक है, चलो आज मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उस दिन ज़्यादा डिटेल में गए थे। थोड़ा आपको आज शॉर्ट में बता सर देता हूँ। नहीं हुआ शायद 10 का। नहीं हुआ था? कॉस और साइन का कराया था आपने। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो y इज इक्वल टू टेन एक्स, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, तो पहले यूनिट सर्कल से समझते हैं, ऐसे नहीं होगा, है ना। यस सर। माउस से इतना अच्छा मेरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है, देखो। ठीक है, तो टेन दिस इज ओरिजिन, दिस इज वन कॉमा, चलो इस बार आपका मैं काम थोड़ा कम कर देता हूँ। वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, माइनस वन कॉमा जीरो, एंड दिस इज जीरो कॉमा माइनस वन। ठीक है, व्हाट इज टेन एक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना, ये यस। पूछ रहा हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि सी व्हाट वी कैन डू हियर इज लाइक वी कैन फाइंड आउट द ग्राफ ऑफ we can find out the coordinate of any point on the circumference in terms of sine and cosine. अब बात समझे? So if we can find out the coordinates of any point in terms of sine and cosine, we can definitely talk about, or we can definitely have the value of tan x also, because there is a relation between tan x and sine and cosine. So tan x is equal to sine x upon cos x. ठीक है, तो ये पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ए। ओके, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ऑल द पॉइंट्स आर रिटन इनसाइड सर्कल। ठीक है, यस सर। सो पॉइंट ए पर tan का वैल्यू क्या होगा बता दो। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज 0.1। tan जीरो, tan जीरो क्या होगा? साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। कॉस जीरो। साइन जीरो क्या है? अब बात समझ लो, ये कोसाइन वैल्यू है, ये साइन वैल्यू है। सो साइन जीरो क्या है? जीरो। वेरी गुड, एंड कोसाइन जीरो? 1। तो जीरो अपॉन वन क्या होता है? जीरो। श्योर? 1 नॉट वन? डिफाइंड होता है। जीरो नॉट? जीरो जीरो सर, जीरो। जीरो पक्की तो। बात है? यस सर। जीरो की वन की नॉट डिफाइंड? तो जीरो। जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे tan का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। कहाँ पर? पॉइंट ए पर, मीन्स 0 डिग्री पे। ठीक है, ग्राफ, चलो मैं एक हिस्सा बनाता हूँ ग्राफ का, बाद में तो पैटर्न बना ही लेंगे। तो ये थीटा है, वो ये, सो y इज इक्वल टू tan थीटा। So at 0 degree, what is the value of tan theta? जीरो। Zero. So my corresponding point is this, right? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आप 90 डिग्री पे, बीच का छोड़ दो। 90 डिग्री पे, क्योंकि देखो शार्प ग्रेजुअल इंक्रीमेंट है, स्मूथ कर्व रहेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो, बिकॉज ऑफ द यूनिट सर्कल। तो 90 डिग्री पे tan का वैल्यू क्या होगा ये बता दो मुझे। तो tan 90 इज इक्वल टू क्या होता है? आप 1/0। वन अपॉन जीरो, ये क्या होगा? सो नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब लार्जेस्ट नंबर। ओके, इन्फिनिटी मतलब लार्जेस्ट नंबर। कौन सा है नंबर लार्जेस्ट? कोई लार्जेस्ट नंबर बताओ। सर 999999999। उसमें प्लस वन कर दो, वो कहाँ रह गया लार्जेस्ट? सर वही। तो लार्जेस्ट नंबर ऐसा कोई नहीं है जो लार्जेस्ट इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, तो एक्चुअली tan 90 पे, चलो नेक्स्ट एंगल है अपना 90 डिग्री। tan 90 पे tan x tan थीटा का वैल्यू क्या है ना। 90 पे कितना है tan का वैल्यू? tan 90 क्या है? इन्फिनिटी है।
इन्फिनिटी। है ना। तो इन्फिनिटी के लिए मतलब क्या होता है वो, infinity के लिए largest number, right? So at for for this line or like for angle 90 degree, the graph will go like this. It will start from zero. It will go along this line. It will never touch that line. Are you getting that? Means at 90 degree, y is equal to tan theta. At 90 degree, tan theta is largest. Means y coordinate is largest, right? लार्जेस्ट मतलब क्या यस होगा, सर। कभी टच नहीं होगा, इन्फिनिटी पे जाके टच होगा, इसका मतलब कभी टच नहीं होगा, है ना। तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो आप यस सर। देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको ग्राफ का, है यस ना। सर। सेम बनाया ना हमने। यस सर। ठीक है। अभी 180 डिग्री पे व्हाट इज द tan 180, व्हाट इज tan 180? सर जीरो। जीरो हो गया। तो 180 डिग्री पे आपका ग्राफ क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा। और फिर उसके बाद 270 डिग्री पे क्या हो रहा है, -1/0। -1/270 पे -1/0, जीरो। विच इज अगेन इंफिनिटी। तो ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो 270 पे, और ये ऐसे करके जाएगा। ठीक है। इसके पैरेलल जाएगा वो, टच नहीं होगा उसको, क्योंकि वो इंफिनिटी तक जा रहा है ना। यस ठीक है। सर। तो ये दो पार्ट समझ गए ग्राफ के आप। यस सर। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, 90 टू 180 डिग्री आ रहा है। ये 180 टू 270 तो हमने कर दिया, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 टू 180 के ग्राफ क्या होगा, 90 टू 180। तो 90 टू 180 में tan का वैल्यू क्या हो रहा है, सर डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर जैसे ये आप लेते हो या यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हो, है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हो इस पार्ट पे, ठीक है। यस सर। तो वहां पे tan का वैल्यू क्या होगा, सर डिक्रीज होगा। नहीं नहीं, अगर मान लो यहाँ ये पॉइंट पे साइन नेगेटिव, कोसाइन नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, है ना। यस सर। ठीक है। सो अगर व्हाट वुड बी द साइन ऑफ tan, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना, समझ रहे हो, क्योंकि प्लस अपॉन माइनस इज नेगेटिव। तो अगर आप ये प्लस अपॉन माइनस इज नेगेटिव, अगर सपोज यहाँ पे हो आप, ठीक है, इस पॉइंट पर हो, हाँ, यस सर। तो आप देखो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, राइट। देखो जैसे आप ये यहाँ पे क्या इंफिनिटी है, राइट। आप जैसे ये क्रॉस करते हो मीन्स 91 डिग्री पे आते हो, थोड़ा अच्छे से समझो क्योंकि मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ। एक्चुअली ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट वो इजीली समझ में आएगा। बट थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर 91 डिग्री पे आता हूँ, जैसे 91 डिग्री पे आऊंगा तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। आप समझ रहे हो बात। देखो जैसे 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है ना। लेकिन जैसे 91 डिग्री पे आओगे तो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, यस एक्स सर। कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, यस सर। राइट। तो प्लस इंफिनिटी से सीधा माइनस इंफिनिटी स्विच कर जाता है। तो इसके यस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ जो है आपका वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है और फिर वो जीरो पे जाके कनेक्ट होता है। ठीक है ना। देखो जीरो पे 180 डिग्री पे जीरो पे जाके कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही 90 के आगे आते हो, है ना, यस सर। द वैल्यूज इज नेगेटिव, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो पे आ जाता है डायरेक्ट। आप बात समझ रहे हो यहाँ पे। यस थोड़ा सर। आपको देखो बुक में ट्रायंगल बना के नहीं दिया है, इसलिए मैं ट्रायंगल बना नहीं रहा हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। बट इजिली आप समझ सकते हो। जैसे 90 डिग्री पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan, एट 90 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan। सर 1। क्या बात
इन्फिनिटी इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी। तो जैसे ही 90 को क्रॉस करते हो, 91 पे आते हो, तो प्लस इन्फिनिटी जो होता है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, वो प्लस इन्फिनिटी सीधा स्विच हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर है? यस सर। तो यही ग्राफ है। अच्छा, अब इस ग्राफ में आप मुझे पीरियड बताओ। इस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो वेदर इट इज पीरियोडिक फंक्शन और नॉट। यस सर। पीरियोडिक फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? व्हाई इट इज पीरियोडिक? Periodic function means the function which the graph of the function which repeats after some interval of time, right? तो यहाँ पे देखो आप, ये इसके पीछे का ग्राफ इसीलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये -90 पे ऐसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर आगे का भी देखते हो आप, ठीक है, आगे का अगर ग्राफ देखते हो यहाँ पे, दिस इज ऑल पॉजिटिव, मीन्स फॉर ऑल पॉजिटिव एंगल। देखो आप ग्राफ कैसा है, यहाँ से ऐसा गया है, फिर ऐसा है ना? तो ये एक्चुअली पीरियोडिक ही हुआ ना। आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम द ग्राफ रिपीट्स, है ना? एक जैसा ही ग्राफ है ना? यस सर। कोई डाउट है? ग्राफ तो एक जैसा ही बन रहा है कुछ टाइम के बाद, है ना? तो जो यस। टाइम है दैट इज कॉल्ड पीरियड। सो व्हाट इज पीरियड हियर? 360 180। हाँ, 180 है, ठीक है ना? तो पीरियड क्या होता है? देखो आप, जो दो इक्वल ग्राफ है उनके बीच में कितना का डिफरेंस है, इस तरह से भी आप पीरियड निकाल सकते हो, है ना? तो ये 360 माइनस 180 इज 180। सो दिस इज पीरियड ऑफ tan ग्राफ, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम है। एम्पलीट्यूड क्या है? What is the maximum? What is amplitude basically? The distance of the maximum point from the मिनिमम। principal axis. No, no, from mean, yeah, mean line or the principal axis. So सर what is इन्फिनिटी। infinity? Yeah. So the amplitude is infinity here. ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड सब एग्जिस्ट कहाँ करेगा, मीन्स कहाँ पर आएंगे एम्पलीट्यूड? एक्चुअली एम्पलीट्यूड तो आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी पे है। लेकिन जो जहां पे ये ग्राफ कौन से लाइन को टच नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट, ठीक है? सो वी हैव वर्टिकल एसिम्प्टोट हियर विच इज x इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ग्राफ टच नहीं कर रहा है ना? x इज इक्वल टू 180 डिग्री पे ग्राफ टच नहीं कर रहा है, सॉरी 180 नहीं, कितना? प्लस माइनस 270। हाँ, 270 पे टच नहीं कर रहा है, 90 पे टच नहीं कर रहा है ना? सो यस दीज सर। आर एसिम्प्टोट, क्या बोलते हैं इसको? एसिम्प्टोट। एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्प्टोट। व्हाई वर्टिकल एसिम्प्टोट? Because the graph is not लाइन touching के the लिए। vertical line, because the graph is not touching the vertical line, वर्टिकल। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ। इफ वी हैव वर्टिकल एसिम्प्टोट, वी मे हैव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आल्सो, है ना? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को क्या वो कैसे बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है व्हेन द ग्राफ डजंट टच द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? तो वो हम यस आपको ऐसे बता के रख रहा हूँ आगे के लिए। सो वर्टिकल एसिम्प्टोट इज अ लाइन वेयर द ग्राफ डज नॉट टच द वर्टिकल लाइन, इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है? कुछ डाउट है? सर। नो सर। नो डाउट। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को, इसके अंदर कोसाइन फंक्शन के अंदर हाँ, ये लिखा हुआ था cos x इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट x प्लस 90। क्या है? cos x इज इक्वल टू साइन, x प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 90। हाँ, क्या करना है इसमें? तो ये समझ नहीं आया मेरे को। मैंने अभी आपको एक दूसरा रिलेशन बताया ना, जिसमें था साइन x इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स, है ना? अभी यस सर। ये जस्ट आपको एक रिलेशन बताया मैं, याद है ना? ट्रायंगल बना के, राइट एंगल यस ट्रायंगल, ठीक है? तो ये समझते, ये आपको दिया हुआ है, क्या पूछा है? इसको वेरीफाई करो।
So इसके अंदर लिखा है, you may also notice that the cosine function has the same shape as the sine function, but is फेस डिफरेंस translated 90 डिग्री। हाँ, 90 degree to the left. वही तो यहाँ लिखा है। देखो राइट करो चाहे लेफ्ट ट्रांसलेट करो, है ना। आप Yes, देखो, मैं दो ग्राफ बना देता हूँ, पहले आप समझ लो इस चीज को। ये देखो, इसको एल्जेब्रिकली भी समझ सकते हैं बाय ड्राइंग ट्रायंगल एंड ऑल, लेकिन जैसे आपने जो लाइन पढ़ा है उसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन बता रहे हैं ना उसमें। तो ये आपका साइन ग्राफ है। ठीक है, yes sir. दूसरा बनाता हूँ कोसाइन ग्राफ। तो कोसाइन ग्राफ कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है और और कैसे जाता है। V बन जाएगा सर। हाँ, ऐसे जाएगा। ठीक है, हम्म। ऐसे जाएगा। ठीक है, Yes, तो अगर आप देखो इस पार्ट को इसके और आगे लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, या तो आप साइन ग्राफ को 90 डिग्री लेफ्ट करो राइट करो, या तो कोसाइन ग्राफ को 90 डिग्री लेफ्ट राइट करो। ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे अगर ट्रांसलेट करते हो आप। ट्रांसलेशन मीन्स क्या, मूव करते हो ग्राफ को बाय सम वैल्यू। तो यहाँ पे देखो कितने वैल्यू से ट्रांसलेट किया है। सिंस वी 90. हैव x माइनस 90 डिग्री, सो x माइनस 90 इज सेट टू 0, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक्चुअली साइन ग्राफ को अगर 90 डिग्री राइट में मूव करोगे तो वो कोसाइन ग्राफ बन जाएगा, यही हो तो बोल रहा है। ठीक है, साइन ग्राफ को 90 डिग्री राइट में मूव करते हो, राइट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये बात याद रखो। अगर नेगेटिव आता तो लेफ्ट में मूव कर जाते। ठीक है, अगर साइन ग्राफ को राइट में 90 डिग्री मूव करोगे तो वो कोसाइन ग्राफ बन जाएगा, बस यही बोल रहा है। तो ये साइन ग्राफ है ना। Yes sir. हम्म, Yes sir. ये क्या है, कोसाइन ग्राफ है ना। नहीं, ये इसमें क्या क्या रीड करो जरा, 90 डिग्री लेफ्ट में मूव करना है इसमें। ठीक है, Yes sir. हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये 90 डिग्री माइनस कर रहा है ना। तो 90 डिग्री देखो लेफ्ट में मूव करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सर ये ओवर। x plus 90 है। एक्स प्लस है ना, हाँ वही तो, तभी होगा वो। एक्स प्लस 90 है तो क्या हो जाएगा तब वो, 90 माइनस डिग्री 90 माइनस, हो जाएगा। है ना। सो माइनस 90, तो 90 डिग्री लेफ्ट में मूव कर दो तो देखो ये साइन ग्राफ इसके ऊपर आ जाएगा ना, ये पॉइंट देखो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये कोसाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा Yes आप, sir. है ना। चलो इसको मैं है ना आपको इससे बताता हूँ पहले। एक एस्मो से है टाइम अपने पास, हाँ है ना। देखो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। देखो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, Plus ये, 90. हाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स एक ग्राफ है। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। नहीं नहीं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है आपके क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। और दूसरा है साइन एक्स प्लस 90, है ना। Yes sir. साइन एक्स प्लस, देखो जैसे ही 90 करूंगा, पहले तो 9 हटा दो। ठीक है, देखो साइन ग्राफ और कोसाइन ग्राफ दिख रहा है अलग अलग। Yes sir. जूम कर देता हूँ जरा। ठीक है ना, देखो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। जैसे Yes sir. इसमें 90 माइनस करूंगा, नहीं प्लस करूंगा, देखो ओवरलैप हो जाएगा 90 डिग्री ना। अच्छा, ये रेडियन में ले रहा है। ठीक है, पाई बाय 2 करने दो, ये रेडियन में ले रहा है, पाई बाय 2। देख रहा है आपको, ग्राफ Yes. ओवरलैप कर गया है ना। तो अगर माइनस कर दूं तो फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो, जिसलिए मैं वो नहीं कर पा रहा था, तभी आपका इक्वेशन रॉन्ग था इसकी वजह से। तो मैं 90 डिग्री लेफ्ट में जाने वाला था। ठीक है ना, तो जैसे आप Yes. 90 डिग्री लेफ्ट में मूव करोगे ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो यही है Yes. बस। चलो और क्या आगे। सर एक बार उसकी पिक लेनी थी। हाँ ले लो।
डन सर। डन। यस सर। देखो अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा जल्दी नहीं हो पाएगा, तो 5 मिनट में। तो एक दो क्वेश्चन कर लो या तो डाउट पूछ लो। ओके सर। 30G, क्या क्या हमने आज 30G से स्टार्ट किया है ना। 30G का कोई भी क्वेश्चन कर लो एक। सर मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था, अच्छा। 16th वाले पे, 16th का डी पार्ट पे। 16th किधर है? 16 पेज नंबर क्या है? बहुत पेज नंबर है 514। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो दिया हुआ है डायग्राम, ये क्या? यस सर, इसका डी पार्ट। इसका डी पार्ट? यस सर। क्या बात है। तो इसका डी पार्ट क्या है? डी है यहाँ पे, एच है, और tan फाइव में रिलेशन बोल रहा है ना। ठीक है ना, तो निकाल लेते हैं। हाँ, यस सर। बताओ कैसे निकालेंगे तब। tan थीटा ले लो। देखो tan थीटा और tan फाइव निकालना है ना। तो tan थीटा बता दो क्या है, और tan फाइव क्या है वो बता दो। ये ट्रायंगल है यहाँ पे, tan थीटा क्या होगा बता दो। राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ए बी सी ही लेना है, ए बी सी, क्योंकि वही राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और इसको मैं डी बोल देता हूँ अगले के लिए। तो tan थीटा अगर निकालना है, ट्रायंगल ए बी सी लोगे है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी में यू कैन फाइंड आउट tan थीटा। क्या होगा tan थीटा, जल्दी बताओ। एच सर अपॉन डी प्लस अपॉन डी एक्स। प्लस एन। हाँ, एच अपॉन डी प्लस एक्स। एक्स। हाँ, सो एच अपॉन डी प्लस एक्स। और tan फाइव क्या होगा? ट्रायंगल ए बी डी ले लोगे है ना। राइट एंगल ट्रायंगल चूज करना। तो ट्रायंगल ए बी डी में tan फाइव क्या हो जाएगा? एच अपॉन एक्स। एच अपॉन एक्स, है ना। तो अभी इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे चाहिए था। तो जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही ले लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1/tan थीटा 1/tan फाइव किया है, तो रेसिप्रोकल ले लेता हूँ मैं भी यहाँ पे। आइडिया तो उसने ही दे दिया ना क्या करना है। तो 1/tan थीटा ले लो, तो x प्लस डी अपॉन एच। हाँ, वन यस। अपॉन टेन फाइव कर दो यहाँ पे भी, है ना। अगर नहीं दिया होता तो मैं कुछ अपने हिसाब से करता, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि भाई आपको ये करना है, तो करते हैं वैसे। तो 1/tan फाइव 1/tan थीटा निकाल लिया। अभी इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 1/tan थीटा माइनस 1/tan फाइव, है ना, डिफरेंस ले लिया। मतलब ये ब्रैकेट आ गया हम लोगों को। क्या है ब्रैकेट? एक्स प्लस डी अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच, है ना। तो एक्स अपॉन एच प्लस, सेपरेट कर दे रहा हूँ, डी अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच, ये कैंसिल हो गया। क्या मिल गया? डी अपॉन। डी अपॉन एच, एच को ट्रांसफर कर दोगे, मिल जाएगा ये। समझे? यस सर। वो दिखता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसका भी कॉपी ले लो आप, चाहिए तो 1 मिनट को कंप्लीट कर लो। tan फाइव, सो डी इज इक्वल टू एच 1/tan थीटा माइनस 1/tan फाइव। ठीक है, डन। ले लो कॉपी। डन सर। डन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ओके। न्यू टॉपिक। ओके, न्यू यस मीन्स थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। ओके, बाय यस बाय। सर। बाय सर।